Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's social studies time for class 6. Today we are going to continue unit number 11, which we have been studying in our previous videos as well. This topic was all about Muslims' invasions and kingdoms of South Asia. Alright. In this topic previously we have studied about the Muhammad bin Qasim, then Ghaznavid dynasty, then we studied about Salatin Delhi, in which we studied that this sultanate was ended in 1526 AD. The last rulers were the Lodhis, who were defeated by Babur in 1526 AD. Now, who was Babur? Today we are going to continue the invasions or the kingdoms after 1526 in South Asia. Let's see who was Babur and what happened after 1526. So today we are going to study about the Mughal Empire. Mughal Empire, इसका नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? Kings, queens, princes, पैलेस, इस तरह की चीज़ें माइंड में आती है ना, तो ये बिल्कुल मुग़ल्स ऐसे ही थे। और इसमें फर्दर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा मुग़ल एम्परर्स के बारे में। मुग़ल एम्परर्स कहते हैं रूलर्स को, यानी कि मुग़ल्स के जो रूलर्स थे इंडिया में, उनके बारे में हम इस टॉपिक में शॉर्टली रिव्यू करेंगे। लेट्स सी, हमने बात शुरू की थी हु वॉज बाबर। सो बाबर वाज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर। बाबर फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे who founded the Mughal Empire in India. He started his reign in 1526 and ended in 1530. It was a very short time period, but overall he was a brave, ambitious and great general. Great general, who is general? He was the general of his own army. तो इसने अपने रेन में एक बड़ा एरिया इंडिया का कंकर्ड किया। देन ही डाइड इन 1530 एंड राइट आफ्टर हिज डेथ ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। मींस बाबर के बाद इंडिया को किसने रूल किया? उनके अपने ही बेटे ने। एंड हु वाज हिज सन? ही वाज द मुग़ल एम्परर हुमायूं। यस, हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर. He was actually not a very good ruler of the Mughal Empire. He lost many of his areas in his rulership, and then he died in 1556, and he also was succeeded by his son now. Alright, so who was his son? Jalaluddin Akbar was the son of Humayun. Right? Jalaluddin Akbar या बादशाह अकबर या किंग एम्परर अकबर, इसके बारे में आपने शायद कुछ ड्रामों में या फिल्म्स में देखा हो। ही वॉज ओनली 13 years old when his father died and he had to take charge of India. इंडिया का चार्ज अकबर ने किस एज में ले लिया था? 13 की एज में। हालांकि ये बहुत कम एज होती है किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए, लेकिन अकबर ने कंट्री को बहुत सेंसिबली रूल करना शुरू किया। ही रूल्ड फॉर 51 years। 51 years तक अकबर ने इंडिया को रूल किया। हिज ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 1556 to 1605. देन ही डाइड इन 1605 and he also was succeeded by his son. जलालुद्दीन अकबर के बाद किसने चार्ज लिया? It was taken by his son and he was नूरुद्दीन जहांगीर. Yes, आप जहांगीर को जहांगीर के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल नेम था सलीम. Yes, he was the son of अकबर. जहांगीर वॉज अ ग्रेट राइटर. जहांगीर को किताबें लिखने का शौक़ था एंड ही रोट हिज बुक तुज़ुक-ए जहांगीरी. तुज़ुक-ए जहांगीरी के नाम से एक किताब लिखी इन्होंने. देन ही डाइड इन 1627 AD
and he also was succeeded by his son, and his son was शाहजहां. शाहजहां को देखते ही अगर कुछ माइंड में आता है तो वो क्या है? ताजमहल. यस. सो his reign started in 1627 and it ended in 1658. His real name was Khurram and he was a very great builder. शाहजहां के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा पैलेस, मॉस्क्स एंड बिल्डिंग्स बनी, एंड हिज फेमस आर्ट वाज ताजमहल. His time is known as the golden period of the Mughal Empire. तमाम मुग़ल रूलर्स में से अगर किसी के एरा को गोल्डन पीरियड कहा जाता है तो वो शाहजहां का एरा है. इसमें इंडिया ने आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की. Then after his illness, he also was succeeded by his son, and his name was Aurangzeb. Aurangzeb in nature was a very simple and kind person. He used to make and sell caps. ये कैप्स बनाते थे और बेचते. ऑल्दो ही वॉज अ किंग, लेकिन सिंप्लिसिटी इनमें इतनी थी कि ये खुद कैप्स बनाते थे और बेचते थे और उससे अपना गुजारा करते थे. औरंगजेब died in 1727. Then after the Aurangzeb, the Mughal Empire started to decline. मुग़ल एम्पायर का फॉल शुरू हो गया. मुग़ल एम्पायर नीचे आना शुरू हो गया, या आप कह लें कि उसकी मुग़ल एम्पायर उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं रहा. और उसके रीजंस क्या थे? दैट मुस्लिम्स डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स इन स्मॉल किंगडम्स. किसी एक रूलर की बजाय सब ने अपनी अपनी स्मॉल किंगडम्स बना ली. और द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न वॉज द ब्रिटिश इंटरफेरेंस स्टार्टेड राइट आफ्टर औरंगजेब. जब मुस्लिम्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए स्मॉल किंगडम्स में, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश को स्पेस मिला, चांस मिला इंडिया में इंटरफेयर करने के लिए. एंड देन इन द ईयर 1857 देयर इज a war broke out that is known as War of Independence. ये वॉर बेसिकली थी ब्रिटिश वर्सेस मुस्लिम, सिख्स एंड हिंदूज़. ठीक है, यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट मुस्लिम, सिख्स और हिंदूज़ ने मिलकर एक वॉर की थी. इट्स नेम इज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. बट व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर? द ब्रिटिश वॉन दिस वॉर, एंड देन particularly with the Muslims, the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was sent to jail, and the Mughal family was dishonored badly. यानी कि बहुत बुरा बिहेव किया ब्रिटिश ने मुग़ल फैमिली के साथ, और जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको इम्प्रिजन कर दिया या जेल भेज दिया गया. ऑलराइट बेटा, it was all about the Mughal Empire in South Asia, and now it's the time for homework assignment. You have to read unit number 11 of page number 80 to 81, and you have to do question number 3 to 4 in your copy. Thank you so much. Fi Aman Allah.